زندگی میں نا کچھ شوق پالیں، ایسے شوق جن کو آپ زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر چلیں، ایسے شوق جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، ایسے شوق جو آپ کے رشتوں کو بھی لے کر چلے اور آپ کے کام کو بھی لے کر چلے، ایسے شوق جن سے آپ کا بھی فائدہ ہو دوسروں کا بھی فائدہ ہو، ایسے شوق جن سے آپ کو بھی پراؤڈ فیل ہو کہ میں نے یہ کیا ہے تو یہ واقعی ہی ایک فخر کا کام ہے میرے لیے، اور دوسرا بھی اس میں فخر محسوس کرے کہ واقعی اس انسان کی تربیت اچھی ماں نے کی ہے، اچھے والدین نے اس کی پرورش کی ہے جنہوں نے اس میں یہ شوق پالے۔ تو اپنی زندگی کا ایم بنائیں، اپنی زندگی میں 5 ایسے شوق پال لیں جو آپ نے کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایک شوق، سب سے پہلا شوق جو آپ لوگوں کا خود کا ہوتا بھی ہے تو میں سب سے پہلے اسی شوق سے لے کر چلوں گی آپ لوگوں کو۔ ایک شوق پیسے کا شوق، دوسرا شوق علم کا شوق، تیسرا شوق لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا شوق، چوتھا شوق جس کو آپ نے ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے شوق، اللہ تعالیٰ سے لگن، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا۔ پانچواں اور آخری شوق جو آپ نے رکھنا ہے وہ لوگوں کو دینا۔ ظاہر ہے لوگوں کو تو ہم نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے منگتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ لیکن ہم کس صورت میں لوگوں کو دیں گے، کس طرح سے ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے یہ ہم جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بنے رہیں ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے اس میں۔ تو فرسٹ آف آل آپ پیسہ کمائیں، ایک شوق جس میں آپ نے اپنی کوئی فیلڈ رکھی ہوئی ہے، ایک شوق یہ کہ میں یہ کروں گا تو کل کو اس میں مجھے یہ فائدہ ہے، اتنے پیسے آئیں گے۔ کوئی ایک شوق جو آپ نے اپنی فیلڈ رکھی ہوئی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں آگے جا کے بہت کمانے والا ہوں، وہ ایک شوق کہ آپ کس طرح سے کما سکتے ہیں، پیسہ کس طرح سے کمانا ہے، یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہوگا کہ مجھے پیسہ بھی کمانا ہے اور شوق بھی میرا ہے تو اس انٹرسٹ کی طرف چلے جائیں، شوق سے کمائیں تو مزہ بھی آئے گا۔ اگر ہم ایک شوق سے کام کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس میں اپنے آپ ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ ہی شوق مزہ آنے لگ جاتا ہے کام کرنے میں، جتنے مرضی گھنٹوں گزر جائیں لیکن ہمیں شوق ہوگا ظاہر ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گھنٹے کب گزرے۔ اس طرح سے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پیسہ کمانے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس طرح کمانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اتنے پیسے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارا یہ سٹیٹس ہو، یہ سب چیزیں لالچ نہیں ہوتی ہیں، یہ واقعی ہی ہونی چاہیے ایک انسان میں، کیونکہ جو آج کل دور چل رہا ہے اس میں اتنا مہنگائی والا دور جس میں ہم روپے کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ انسان بات کرنے کے لیے بھی ایسے لگتا ہے جیسے پیسے دے گا۔ تو ہمیں پیسہ تو کمانا ہی ہے، اس چیز کو ہم نہ لالچ کہہ سکتے ہیں، نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ تو صرف پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمارا پیسوں کا بھی شوق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کیسے لگانا ہے؟ اپنی نمازیں زیادہ کر دیں، جہاں آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں وہاں 6ٹھی نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ چاہے اس لالچ سے شروع کر دیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے وہ ہمارے پیسوں میں اضافہ کرے یا ہمیں اچھے اچھے آئیڈیاز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو آئیڈیاز کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو آپ کی سننے والا کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی حکمران کے پاس جائیں یا جو آپ کا شوق ہے اس شعبے میں آپ مینیجر کے پاس جائیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے یا اتنی پے کر دے، جب تک وہ آپ کی نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنے اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ تو دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بہت زیادہ لگانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کا لگاؤ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بغیر لالچ کے آپ کو ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو دنیا میں جتنے مرضی بندے ہوں بغیر لالچ کے یا بغیر اپنے فائدے کے کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں کر کے دیتے۔ صرف ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بغیر کسی لالچ کے بغیر معاوضے کے ہمیں ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، تہجد پڑھنا شروع ہو جائے، چاشت پڑھیں، ہر نماز میں اپنے لیے دعا مانگے، سجدے لمبے کر دیں، جہاں آپ جلدی جلدی سجدے کرتے ہیں، جلدی جلدی رکوع کر کے اور جلدی سے نماز ختم کر کے اپنے کام کی طرف یا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو تسلی سے پڑھیں۔ باقی ایکٹیویٹیز تو ہوتی رہیں گی لیکن جب آپ نماز تسلی سے پڑھیں گے نا اس میں بہت فائدے ہیں آپ کے۔ ایک فائدہ یہ کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے اور جس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں
वो पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो जब हम अल्लाह ताला से देर देर तक मांगेंगे, अल्लाह ताला से बार बार इस चीज़ की इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह ताला हमें ये चाहिए, हमें दे दे, तो वो आपको देगा, देर सही लेकिन देगा ज़रूर। लेकिन वो तब जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप अल्लाह ताला को वक्त देंगे, जब आप अल्लाह ताला से ज़्यादा देर बातें करेंगे, जब आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, सच्चे दिल से मांगेंगे। और हर चीज़ को छोड़ के, जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हर चीज़ को छोड़ दें, दुनिया की किसी चीज़ को माइंड में नहीं लाना, सिर्फ अल्लाह से बातें, अल्लाह का कलाम और अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की इबादत सोच कर आपने नमाज पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया। जब हम अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला देंगे, तो हमारा एक ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। 2 शौक़ हो गए। तीसरा शौक़ ये पैदा करना है अपने अंदर कि इल्म हासिल करना। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लें, जितनी मर्जी डिग्रियाँ ले लें, जितना मर्जी आप पढ़ लिख जाएँ, लेकिन जब आपको किसी को ट्रीट नहीं करना आता, जब आपको किसी से बोलना नहीं आता, जब आपको किसी के साथ बात करनी ही नहीं आती, तो फ़ायदा ऐसे इल्म का। तो दूसरा, आप इल्म हासिल करें, ये नहीं कि सिर्फ हमने जो वो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ इनको रट्टे लगाने, इल्म ये नहीं होता। इल्म असल में आपको जाहलियत से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आ रहा होता है। इल्म हमें ये सिखाता है कि हमें बातचीत कैसे करनी चाहिए, रिश्ते का लिहाज किस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा हमें ये सिखाता है कि हम अपने छोटे से ट्रीट किस तरह करें, बड़े से ट्रीट कैसे करें। और हम क्या कर रहे होते हैं, जालियत दिखा रहे होते हैं, तो फिर वो तो पढ़ा लिखा जाहिल हुआ ना। तो फिर फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो इल्म हासिल कर रहे हैं आप, तो ऐसा इल्म हासिल करें कि जिससे आपकी ज़ुबान से वाकई लगे कि बंदा पढ़ा लिखा है। बंदा डिग्रियों से नहीं पहचाना जाता, कोई भी आपकी डिग्री पहले नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी बोल चाल से पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप किसी 2 बंदों में बैठेंगे, पता चलेगा बोल चाल का कि वाकई इल्म रखता है। आपके पास इतनी हज़ारों डिग्रियां हों और बहुत इल्म आपके पास हो, आप जो मर्जी डिग्री ले चुके हों और आपको बोलने का तरीका ही नहीं है, तो फ़ायदा है इस इल्म का। तो अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो लोगों में इंसानियत फैलाएं, लोगों में अच्छाई फैलाएं, लोगों में उठने बैठने का तरीका होना चाहिए आप में। इल्म ऐसा हासिल करें कि ताकि आपसे भी लोग इल्म हासिल कर सकें, आपकी बातों से लोग इल्म हासिल कर सकें, आपके चाल चलन से लोग कह सकें कि वाकई इल्म बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनैलिटी से बताएं कि इल्म क्या होता है। इस चीज़ से ना बताएं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी इतनी वैल्यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे बात कर लूँ, या तुम अनपढ़ हो, या तुम छोटे बंदे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने मुझे बुलाया है, या मैं उनसे बात के बुलाते हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि जो खुद भी मेरे जितने स्टेटस के हों। ये इल्म नहीं होता है। तो हमारी 4th चीज़ क्या है कि हमें लोगों को कैसे देना है। वैसे तो हमारे अल्लाह ताला हैं, हमारे अल्लाह ताला हर किसी को दे सकते हैं, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग भी तो अपनी इंसानियत दिखाएं ना। अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप लोगों को दें। आप दिखा के किसी को ना दें, दिखावा बहुत बुरी चीज़ होती है, दिखा के किसी को ना। अगर आपने ये तो सुना ही होगा, अगर एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को ना पता चले, इस तरह होती है नेकी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बंदे की मदद कर देना, हम तो लाखों में फैला देते हैं। मैंने इस बंदे की मदद की थी, मैंने इस बंदे को ये दिया था, मैंने इस बंदे की उस वक्त मदद की थी, मैंने इसको इतना पैसा दिया, मैंने इसको इतना खाने को दिया। फ़ायदा है ऐसा देने का, जो आप एक को दे के और हर महफिल में उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको जता रहे हैं कि मैंने तुम्हें दिया है। ऐसा देना ना देने से भी बुरा होता है। इससे अच्छा आप दें ही ना। अगर आप किसी को दे रहे हैं ना, कुछ किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने तक रखें वो बात। ये होती है नेकी। और अगर आपके पास इतनी हैसियत रखते हैं कि आप लोगों को दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाया करें। यतीम बच्चों को खाना खिलाया करें, मस्जिदों में दिया करें, सबको दिया करें, मिल बांट के खाएं। मोहल्ले में कोई गरीब है तो उसको दिया करें, उसके घर डेली खाना भिजवाया करें। ज़्यादा नहीं सही, थोड़ा तो दें, उनका कुछ तो उससे फ़ायदा होगा ही ना। क्या पता कोई भूखा बैठा हो और जिसको आप दें जाके, एक भूखा है जिसको आप खिला दें, कितनी दुआएं देगा आपको। और अल्लाह ताला भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं, एंड आपको इसका अजर मिलेगा। आप इस दुनिया में 1 रुपया दे रहे हो, उस दुनिया में जाकर पता नहीं कितने रुपए मिलेंगे उसके बदले। तो हमें नेकियां चाहिए या रुपए, ये पैसे से प्यार करना है। देना सीखें लोगों को। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप नहीं दे सकते ज़्यादा, नहीं तो जानवरों को खाना खिला दें। गर्मियों में हम देखते हैं बिल्ली कुत्ते तड़प रहे होते हैं बाहर, हम उनको पानी नहीं पिला सकते। छोटी छोटी नेकियां बहुत मायने रखती हैं। अक्सर ये छोटी छोटी नेकियां बहुत ज़्यादा हमें अजर दे जाती हैं।
वो कहानी तो आपने सुनी होगी, जिस औरत ने थी तो वो गुनहगारी, लेकिन एक कुत्ते को कुएं से निकाल के पानी पिलाया था तो उसको क्या अजर मिला था, वो जन्नत में गई थी। तो हम क्यों नहीं, हम ऐसे काम क्यों नहीं कर सकते कि हमें जन्नत मिल जाए। दुनिया में बहुत से ऐसे काम है जिनसे हम जन्नत कमा सकते हैं। वैसे हम बहुत कह रहे होते हैं कि हमें नेक होना चाहिए, महफिल करा लो, मिलाद करा लो, लेकिन आप लोगों को इतनी तमीज़ नहीं होती कि अगर रास्ते में से आप गुजर रहे हैं तो अगर किसी जानवर को देखें तो हम उसको पानी नहीं पिला सकते। ये होती है नेकियां। अगर नहीं भी कर सकते तो आप ये जो रोड पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पिलक रहे होते हैं, इतने इतने बूढ़े बैठे होते हैं, इतनी उम्र के बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, क्या हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते? उन्हें भी खाना खिला सकते हैं, ये भी अजर है। ज़्यादा नहीं तो आप कम तो करें ना, करें लेकिन निकालें, ये भी सदका जारिया होता है। अपनी ज़िंदगी से सदका निकालते रहें। आपको पता है सदके से कितनी बलाएं टलती हैं, तो सदका दिया करें। ऐसे शौक़ पालें अपने अंदर, ये होते हैं शौक़। ये शौक़ नहीं होते कि मैंने फ़लाँ मूवी देखनी है, या मेरा शौक़ है फ़लाँ बंदे से जाके मिलूं, या मेरा शौक़ है फ़लाँ एक्टर बड़ा हिट पे जा रहा है, मैंने इसके साथ एक सेल्फी लेनी है। ये शौक़ नहीं होते। शौक़ असल में वो होते हैं जो हम हमारे लिए पालते हैं, हमारी ज़िंदगी को उन शौक़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ये शौक़ होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में शौक़ होंगे ना कि हमने ये शौक़ है हमारे और हमने ये पूरे करने हैं, जब हम खुशी से हमारा शौक़ रखते हैं तो हम उसको खुशी से पूरा भी करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में शौक़ रखें और उनको पूरा करें। कोशिश करें कि आप हर शौक़ को पूरा करें अपना। ये शौक़ होते हैं, बाकी सारे फजूल काम होते हैं, वो शौक़ नहीं होते। शौक़ वो होते हैं जो आप रखते हैं, जिनका आप एम बना लेते हैं कि मैंने ये काम करने ही करने, ये शौक़ रखें अपने शौक़ जब आप पालेंगे, ऐसे शौक़ जिनसे आपका भी भला है और लोगों का भी भला है, लोग आपसे खुश होंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। देखें, इससे आपका नाम भी बन गया। ये जो शौक़ आपने पाल रखे थे, जो मैंने बताए हैं, आप इन पर अमल करना शुरू कर दें तो आपकी इससे तारीफ़ भी हो जाएगी। लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। इससे ज़्यादा आप तारीफ़ क्या करवाना चाहते हैं? लोग आपको जब भी याद करेंगे तो आपकी एक रिस्पेक्ट होगी, उनमें आप रिस्पेक्ट देंगे कि वाकई आप पढ़े लिखे इंसान हैं, वाकई आपके अंदर इंसानियत है। ये काम करना शुरू जब कर देंगे आप, तो ये होते हैं शौक़। बाकी सारे फजूल काम हैं, उनको छोड़ दें। उन्हें जो काम आपको वैसे भी गुनाह की तरफ खींच के लेके जा रहे होते हैं, उन्हें वैसे अपने करीब लाने दें। उन्हें देख के वैसे ही इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे शौक़ पालें जिससे आप इस दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी जाके कामयाब हो सके, क्योंकि हमें हमारे नबी को जवाब देना है, हमें हमारे अल्लाह को जवाब देना है। हमारी ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इबादत के लिए आए हैं, लेकिन हम दुनिया में लग गए, दुनियादारी में लग गए। हमें बस ये शौक़ होते हैं कि हम दिखावा होना चाहिए, हमसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, बस मैं हूँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे शौक़ हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हाँ, स्टडी पे आप मुकाबला करें, सबसे करें, वो मैं खुद भी कहती हूँ कि स्टडी में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन बाकी शौक़ तो आप अपने अच्छे रखें ना, जिसमें इंसानियत की भलाई हो, जिसमें दुनिया भी आपकी बन रही हो, जिसमें आखिरत भी आपकी बन रही हो, अल्लाह ताला भी हो जिसमें आपके साथ। ऐसे शौक़ बने, ऐसे शौक़ पालें, अल्लाह ताला को दोस्त बनाएं, अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगना शुरू कर दें, देखिएगा आपको हर चीज़ मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही है, हम बहुत हिट पे जा रहे हैं, तो हम नमाजें छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा वैसे भी जो अल्लाह ताला को छोड़ दे तो अल्लाह ताला भी फिर उसको ऐसे वक्त में छोड़ता है, ऐसे वक्त में गिराता है कि फिर वो खड़ा नहीं हो पाता। और बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं कि अगर अपना काम कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में नमाज होती है, वो अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला के भी करीब होते हैं, और हम समझ रहे होते हैं बस इसने मेहनत की होगी। मेहनत इस तरह से नहीं होती, मेहनत में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। माँ बाप की खिदमत करना, अल्लाह ताला से कितना लगाव है, और उसके अलावा इंसानियत की भलाई, ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेहनत ऐसे नहीं होती, इसको मेहनत नहीं कहते। तो अपनी ज़िंदगी में शौक़ पालें, उन शौक़ को लेके आगे चलें, उन्हें अपना एक एम बना के, एक मकसद बना के फिर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। फिर देखना आप यहाँ भी रिस्पेक्ट के काबिल होंगे, ऊपर जाके भी आपकी एक इज़्ज़त होगी, और आप वैसे भी अच्छे इंसान कहलाएंगे। ये होती है ज़िंदगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड
अगर अभी भी मैं जो मेरी हर लास्ट वीडियो का एक डायलॉग बन चुका है कि अभी भी आपका कुछ रह चुका है, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।